Hello student, you are all welcome in the SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Student, before to start the class 11th, first we are going to start that is a bridge course. Student, bridge course is act like the connecting link between class 9th and 10th with the class 11th and 12th. Okay, so let's start the bridge course. Okay, first of all student, we must know about the science. What do you mean by science? Because you all are the science student and you must know about the definition of science. Okay, and student, but very well, science is defined as the observation, identification, description, experimental investigation, and the theoretical explanation of the natural phenomena. Okay, that is called the science. And but very well, in a science I'm going to teach you biology. Okay, let's start the biology. Student, but very well, what do you mean by a biology? Bio, but very well, bio means that is a life. And the logy means that is a study. That means, a study of life. So you can say biology defined as the what? You can say study of life. So you all welcome to the study of life. And student, but very well, who is the father of biology? The father of biology is Aristotle. Is what? Aristotle. And but very well, student, biology has main three branches. That one is a botany, zoology, and the microbiology. Okay, a botany means that is a study of plant. Okay, and the father of botany, but very well, he is the Theophrastus. And the father of zoology is also the Aristotle. Okay, and zoology means zoo means animal and logy means study of animals. And but very well, microbiology means study about the microorganism. And the father of microbiology is Antony von Leeuwenhoek. Okay, let's start the branches of biology. Student, let's start branches of biology. Okay, first branch we have that is anatomy. But very well, what is the anatomy? How you call it the anatomy? It means that is a study about the what? Structure of living things. Okay, that about the what? Study about the what? Structure of living things. That may be the, you can say, the plant, or that may be the animals, or you can say the microorganism. चाहे माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो ब्रांच स्टडी करता है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास, दैट इज अ बैक्टीरियोलॉजी. दैट इज अ व्हाट? बैक्टीरियोलॉजी. एंड बैक्टीरियोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द व्हाट? बैक्टीरिया. एंड बट वेरी वेल, बैक्टीरिया आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म. बट वेरी वेल. Okay, and the next one we have that is a biochemistry. That is a biochemistry. And biochemistry, that study about the chemical composition in the living organism. हमारे सेल में, हमारे बॉडी में जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल मालिक्यूल्स है, जो कंपोजिशन है केमिकल्स की, तो अबाउट दैट जो उसके बारे में स्टडी करता है, हमारे सेल में केमिकल्स का जो कंपोजिशन है उसके बारे में, तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट वन, बट वेरी वेल, ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, बॉटनी दैट स्टडी अबाउट द व्हाट? प्लांट लाइफ. बट वेरी वेल. नेक्स्ट वन वी हैविंग अ साइटोलॉजी. नाम से ही पता लगता है, लॉजी मीन स्टडी, साइटो मीन दैट इज अ व्हाट? सेल. तो बट द ब्रांच दैट स्टडी अबाउट द सेल फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री. ओके, next one that we have the dermatology. Dermato term means that is related to our skin. हमारे स्किन के लिए रिगार्ड में यूज़ किया जाता है, तो दैट मीन्स स्टडी अबाउट द व्हाट? स्किन. नेक्स्ट वन इकोलॉजी. तो बट वेरी वेल, इकोलॉजी मीन्स दैट स्टडी अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. नेक्स्ट वन वी हैविंग दैट इज एपिडेमियोलॉजी. Epidemiology, but very well, that is a epidemics, widespread disease. जैसे these disease होती पैंडेमिक, एपिडेमिक. पैंडेमिक आगे वर्ल्ड वाइड में जो डिजीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड में, जैसे कोविड-19 आई, तो कोविड-19 इज व्हाट? कोविड-19 इज अ पैंडेमिक पूरा वर्ल्ड में सेपरेट हुई. एपिडेमिक्स आगे जैसे इंडिया में कहीं सेपरेट हो गई, या जम्मू कश्मीर में कहीं सेपरेट हो गई. ओके, दैट इज. Next one, entomology. Entomology means that study about the insects. Okay,
नेक्स्ट वन इथोलॉजी. इथोलॉजी मीन्स दैट स्टडी अबाउट द एनिमल बिहेवियर, कि हाउ दे बिहेव. ओके. And next one very important branch, that is a genetics. And you know but very well genetics mean the process by which the genetic information is passed from parents to their offspring. Okay, मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, जीन इनहेरिट होते हैं. ओके, लाइक बिगेट जो बनते हैं, मतलब हम अपने माता पिता से जो मिलते जुलते हैं वो कैसे मिलते जुलते हैं, शक्ल से, अपने एक्ट से. दैट इज़ ड्यू टू द जीन, क्योंकि हमारे अंदर हमारे माता पिता के जीन्स होते हैं. तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड द जेनेटिक्स. ओके. नेक्स्ट वन दैट इज अ हर्पेटोलॉजी. हर्पेटोलॉजी मीन्स दैट स्टडी अबाउट द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में जो स्टडी करेगा, दैट ब्रांच इज कॉल्ड द herpetology. Okay, like we having the example, these are reptiles में crocodiles, alligators, turtles, amphibians में frogs, toads, salamander. Okay, next one we having the ichthyology, that study about the fishes, you know but where. Next one, these are marine biology, oceanography, that study about the what sea creatures and the underwater environment. ओके, जो भी सी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, अंडर वाटर एनवायरनमेंट के बारे में. मैमोलॉजी, नाम से ही पता लगता है, स्टडी अबाउट द मैमल्स. मैमल्स वो होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती है. ओके, एग्जाम्पल जैसे आपको बताया कि मैमल्स में क्या क्या करेक्टर है. वार्म ब्लडेड होगा, दैट हैविंग द हेयर, दैट मेक मिल्क. माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी अबाउट द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. ओके. माइकोलॉजी, यू नो बट वेरी माइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं. दैट यू नो अबाउट स्टडी अबाउट द फंगाई, फंगस के बारे में, जैसे मशरूम जो हम खाते हैं एडिबल है, वो भी एक फंगाई है. न्यूट्रिशन, आप सभी जानते हैं हमारी डाइट और हेल्थ के बारे में जो स्टडी, दैट इज़ यू नो बट कि हमें कितना डाइट लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट दिन में कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, फैट्स कितना लेना चाहिए. ओके. नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी, स्टडी अबाउट द व्हाट, बर्ड्स. ओके. नेक्स्ट पैलेंटोलॉजी, स्टडी अबाउट द फॉसिल्स, प्री हिस्टोरिक लाइफ, मतलब फॉसिल्स के बारे में यू नो स्टडी करना. फॉसिल्स के माध्यम से हम जैसे हमें पता लगा कि डायनासोर 60 मिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट था, तो कैसे हमने फॉसिल्स के माध्यम से डिटेक्ट करा. ओके. पैथोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है. यू नो अबाउट आज के डेट में यू नो अबाउट जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले बात है क्या करता है कि जाओ भाई आप पहले टेस्ट करवा लो. टेस्ट करवाने का मतलब क्या है कि यू नो अबाउट टेस्ट में हमें हमारे ब्लड में ये डिटेक्ट होगा कि हमें अगर कोई डिजीज़ है तो कौन यू नो बैक्टीरिया के कारण डिजीज़ है, वायरस के कारण डिजीज़ है, फंगाई के कारण डिजीज़ है. तो इसलिए पैथोलॉजी लैब में हम जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और वहाँ टेस्ट में हम अपने ब्लड सैंपल देते हैं, जिस ब्लड सैंपल से हमें पता लग जाता है कि हमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिजीज़ हुई है. ओके. नेक्स्ट वन सेकेटोलॉजी, यू नो अबाउट दैट अबाउट द एनिमल ड्रॉपिंग्स, यू नो अबाउट वेरेंजा एनिमल ड्रॉपिंग द फीकल मैटर. ओके. नेक्स्ट फिजियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, मतलब फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म फंक्शन एंड कैरी आउट देयर फिजिकल प्रोसेस. ओके. केमिकल प्रोसेस. टैक्सोनॉमी, that about study about the grouping of living things. Okay. Next, virology, study about the viruses and virus like agent, that is a prion, जो proteinaceous virus है, subviral particles है. Okay. Zoology, study about the animal kingdom, animals. And molecular biology, that focuses on the molecular level, that including you know interaction among the molecules such as in our body there is a DNA, RNA and protein, as well as they how they you know regulated. ठीक है. DNA के बारे में स्टडी, RNA के बारे में, DNA कैसे फंक्शन करता, RNA कैसे फंक्शन करता, प्रोटीन का क्या रोल होता. ठीक है. न्यूरोबायोलॉजी, स्टडी अबाउट द आवर नर्वस सिस्टम. ओके. तो दैट ऑल अबाउट द यू नो ब्रांचेज, फ्यू ब्रांचेज अबाउट बायोलॉजी, जो मेन ब्रांचेज है जो हमने आगे पढ़ना है. ओके. थैंक यू ऑल.